Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tado Jayamudire Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistaki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisance unto the personality of God Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in classes and Bhagavatam, and by rendering of service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of God, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhuji Mataji. We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, second chapter, 28 and 29 verse. Pehla skanda, second chapter, 28 and 29. दिस ये बस महाराज 2000 में अबू धाबी में हमको सिखाया, बट क्या सिखाया हमको याद नहीं है. हम कोशिश करेंगे कुछ भी है हमारा दिमाग में वो हम आपको मैं दे सकता हूँ. Whatever is in my mind, whatever is possible, I will try to give. My knowledge is very limited. हमारा knowledge ज्ञान बहुत बहुत कम है, इसलिए हम सिर्फ सीख रहे हैं अभी. So ये बस पढ़ेंगे. परपोर्ट में मैं पढ़ूंगा, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, पढ़ूंगा. उसके बाद मैं कोशिश करूंगा वो ये वासुदेव के बारे में, क्योंकि हम हमेशा हम लोग तीन गुणों का अंदर में बैठते हैं. वासुदेवा शुद्ध सत्वा में है, सो इसलिए उसके बारे में बात करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा तीन गुणों में बद्ध जीव में पड़ा हुआ है, सो गिरा हुआ है. सो इसलिए इतना आसान नहीं है. मैं बात करूंगा, पर कोशिश करूंगा. मेरा हिंदी तो थोड़ा टॉलरेट करना है, बिकॉज तुम और आपको हमको अंतर नहीं मालूम, इसलिए हम तुम बोलेगा आप बोलेगा, प्लीज माफ करना प्लीज. अरे वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मकाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परांगति, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मकाः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परांगति. Word to word. Vasudeva, the personality of Godhead. Paraha, the ultimate goal. Veda, revealed scriptures. Vasudeva, the personality of Godhead. Paraha, for worshipping. Makaha, sacrifice. Vasudeva, the personality of Godhead. Paraha, the means of attaining. Yogaha, mystic paraphernalia. Vasudeva, the personality of Godhead. Paraha, under his control. Kriyaha, fruitive activities. Vasudeva, the personality of Godhead. Param, the supreme. Jnanam, knowledge. Vasudeva, the personality of Godhead. Param, best. Tapaha, austerity. Vasudeva, the personality of Godhead. Paraha, superior quality. Dharma, religion. Vasudeva, personality of Godhead. Paraha, ultimate, gati, goal of life. Translation, purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. In the revealed scriptures, the ultimate object of knowledge is Krishna, the personality of Godhead. The purpose of performing sacrifice is to please Him. Yoga is for realizing Him. All fruitive activities are ultimately rewarded by Him only. He is the supreme knowledge, and all severe austerities are performed to know Him. Religion is rendering, dharma is rendering complete service unto Him. He is the supreme goal of life. Purport thoda zyada hai. I'll try to read all this quickly. Purport. That Sri Krishna, the personality of Godhead, is only the object of worship is confirmed in these two slokas. In the Vedic literature, there is the same objective. Establishing one's relationship, ultimately reviving our lost, loving service unto Him. This is the sum and substance of the Vedas. In the Bhagavad Gita, the same theory is mentioned by the Lord in His own words. The ultimate purpose of Vedas is to know Him only. All the revealed scriptures are prepared by the Lord
through his incarnation in the body of Srila Vyasadeva, just to remind the fallen souls conditioned by material nature of Sri Krishna, the personality of Godhead. No demigod can award freedom from material bondage. That is the verdict of all Vedic literature. Impersonalists who have no information on the personality of Godhead, but the potency of the Supreme Lord, and put him on equal footing with all other living beings. And for this act, such impersonalists get freedom from material bondage only with great difficulty. They can surrender unto him only many, many births in the culture of transcendental knowledge. One may argue that the Vedic activities are based on sacrificial ceremonies. That is true, but all such sacrifices are meant for realizing the truth about Vasudeva. Another name of Vasudeva is Yajna, sacrifice. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated all sacrifices and all activities are to be conducted for the satisfaction of Yajna or Vishnu, the personality of God. That is, this is the case also with yoga system. Yoga means to get in touch with the Supreme Lord. The process, however, includes several bodily features such as asana, dhyana, pranayama, and meditation. All of them are meant for concentrating upon the localized aspect of Vasudeva, represented as Paramatma. Paramatma realization is but partial realization of Vasudeva, and if one is successful in that attempt, one realizes Vasudeva in full. But by ill luck, most yogis are stranded by the powers of mysticism achieved through the bodily process. Ill-fated yogis are given a chance in the next birth by being placed in the family of good learned brahmanas or in the family of such merchants in order to execute the unfinished task of Vasudeva realization. If such fortunate brahmanas and such of rich men properly utilize the chance, they can easily realize Vasudeva by good association with saintly persons. Unfortunately, such preferred persons are captivated again by material wealth and honor, and they thus practically forget the aim of life. This also for the culture of knowledge. According to Bhagavad Gita, there are 18 systems culturing knowledge. By such culture of knowledge, one becomes gradually prideless, devoid of vanity, non-violent, forbearing, simple, devoted to the great spiritual master, and self-control. By culture of knowledge, one becomes unattached to earth and home and become conscious of the miseries of due to birth, death, old age, and disease. All culture of knowledge culminates in devotional service to the personality of God and Vasudeva. Therefore, Vasudeva is the ultimate aim in culturing all different branches of knowledge. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane. This is the word I used. Culture of knowledge leading one to the transcendental plane of meeting Vasudeva is real knowledge. This is the one I have taken. So, physical knowledge in its various main branches is condemned in the Bhagavad Gita as ajnana, or the opposite of real knowledge. The ultimate aim of physical knowledge is to satisfy the senses, which means prolongation of the term of material existence and thereby continuance of threefold miseries. So, prolonging the miserable life of material existence is nuisance. But the same physical knowledge, leading the way of spiritual understanding, helps one to end the miserable life of physical existence and begin the life of spiritual existence on the plane of Vasudeva. The same applies to all kinds of austerities. Tapasya means voluntary acceptance of bodily pains to achieve some higher end of life. Ravana and Hiranyakashipu underwent a severe type of bodily torture to achieve the end of sense gratification. Sometimes modern politicians also undergo severe types of austerities to achieve some political end. This is not actually tapasya. One should accept voluntary bodily inconvenience for the sake of knowing Vasudeva because that is a way of real austerities. Otherwise, all the form of austerities are classified as modes of passion and ignorance. Passion and ignorance cannot end the misery of life. Only the mode of ignorance can mitigate the threefold miseries of life. Vasudeva and Dobiki, the so-called father and mother of Lord Krishna, underwent penances to get Vasudeva as their son. Lord Shri Krishna is the father of all living beings. Therefore, he is the original living being of all other living beings. He is the original eternal enjoyer amongst all other enjoyers. Therefore, no one can be his begetting father as the ignorant may think. Lord Shri Krishna agreed to become the son of Vasudeva and Devaki upon being pleased with the severe austerities. Therefore, if any austerities has to be done, they must be done to achieve the end of knowledge, Vasudeva. Vasudeva is the original personality of Godhead, Lord Shri Krishna. As explained before, the original personality of Godhead expands himself by innumerable forms, and such expansion of forms is made possible by his various energies. His energies are multifarious, and his internal energies are superior and external energies inferior in quality. They are explained in the Bhagavad Gita 7.4 to 6 as a para and apara prakriti. So his expansion of various forms which takes place via the internal energies are superior forms. The expansions which take place via the external energies are inferior forms. Living entities are also his expansion.
The living entities are also expanded by internal potency or eternally liberated persons, whereas those who are expanded in terms of material energies are eternally conditioned souls. Therefore, all culture of knowledge, austerities, sacrifice, and activities should be aimed at changing the quality of love influence that is acting upon us. For the present, we are all being controlled by the external energy of the Lord. Just to change the quality of influence, we must endeavor to cultivate spiritual energy. In Bhagavad Gita, it is said, those who are Mahatmas or those whose minds have been so broadened as to be engaged in the service of Lord Krishna are under the influence of internal potency. And the effect is that such broad-minded living beings are constantly engaged in the service of the Lord without deviation. That should be the aim of life. And that is the verdict of all literature. No one should bother himself with fruitive activities or try speculation about transcendent knowledge. Everyone should at once engage himself in the transcendent loving service of the Lord. Nor should one should worship different demigods who work at different hands for the Lord for creation, maintenance, or destruction of the material world. There are innumerable powerful demigods who look over the external management of the material world. They are all different assisting hands of Vasudeva. Even Lord Shiva and Lord Brahma are included in the list of demigods. Lord Vishnu or Vasudeva is always transcendently situated. Even though he accepts the quality of goodness of the material world, he still transcendent to all the material worlds. The following example will clear the matter more explicitly. In the prison, because there are prisoners and managers of the prison house, both the manager and prisoners are bound by the laws of the king. But even though the king sometimes comes in the prison, he is not bound by the laws of the prison house. The king is therefore always transcendental to the laws of prison house. The Lord is always transcendental to the laws of the material. सर्वात्मना मयि गृणामि एतां मनीषा ईजो जया गुणविसर्गः ये त्रियने कुमार प्रविश्य भगवान् प्रसुप्तां संजीवयति शक्तिधरस्वतां अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते कृष्णा प्रभु जी माता जी in front of वो वैष्णव सेवक के सामने वो सीनियर डिवोटी के सामने बात करना मर्यादा व्यतिक्रमा. Please forgive me, Prabhu, for talking in front of you because you are such a realized person and you have served Maharaj so wonderfully. इतना बहुत अच्छा आप सेवा किया, उसके वजह से आपके इतना मेहनत के वजह से ये इतना बड़ा मंदिर, महाराज का कृपा है डेफिनेटली, बट आपका इतना सेवा किया, इसके वजह से ये this wonderful temple has come manifested in 2019, which was it was like a dream in 2010. वो सपना था 2010 में when Maharaj was leaving, but it has become because you have आप कृष्णा का और महाराज का 100% शेल्टर लिया है, शरण लिया है 100%. इसके वजह से ये सब पॉसिबल है. महाराज के पास इतना भरोसा है, इतना दृढ़ भरोसा है. वो बहुत बहुत कल भी आप बोला है हमसे, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा. सो इसलिए बहुत अच्छा है. थैंक यू वेरी मच प्रभु. हमारा भरोसा भी हम इंक्रीज कर रहे हैं आपके वजह से. थैंक यू वेरी मच प्रभु. सो इसके वजह से ऐसा हुआ है क्योंकि ये महाराज का ये स्वप्न, महाराज का ड्रीम था ये बिल्डिंग बनाना. ड्रीम नहीं है, महाराज का इच्छा था ये मंदिर आना है, इतना बढ़िया मंदिर आना था. महाराज बोल रहा 2003 में महाराज आ रहा था अबुधाबी चेन्नई में. चेन्नई टेम्पल का पिलर देखा, वो पिलर का डायमीटर 3 सेंटीमीटर, 6, 7, 8 सेंटीमीटर ओनली, 8 to 10 सेंटीमीटर डायमीटर. महाराज बोल रहा हमारा ऐसा नहीं बनाएंगे, हमारा डबल और ट्रिपल हो जाएगा. सो इसलिए हमारा बिल्डिंग मे बी 1000 और 2000 ईयर्स से बिल्ड है. ओके, डेफिनेटली रहेंगे वो, क्योंकि इतना बड़ा वो टेम्पल का वो पिलर इतना बड़ा बड़ा है, कभी कभी किधर भी नहीं देखेगा. ना भवो ना भविष्यति. It will never happen in the past, it will never happen in the future. So it is, and also we should be, and today we have to thank also his grace Jathamani Prabhu. उनके वजह से ये हमको ये लैंड मिला, उसके वजह से ये मंदिर आया. So we have to be very grateful. And प्रभु जी एक YouTube वैष्णव से भेजा है, बहुत बढ़िया है. वो ऑलवेज शुद्ध सत्वा में रहना के लिए, शुद्ध सत्वा में रहा,
Yeah, always he was in Shuddha Sattva. We can see how much he was surrendered, you know. एक वो YouTube में है, I will share that past time. उनका दिन ये उसका इनिशिएशन होना चाहिए. सो वो इंजीनियर था, वो अभी तक फुल टाइम डिवोटी नहीं हुआ. वो पढ़ा है, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा है. वो इनिशिएशन का सब तैयार हो गया. वो इनिशिएशन का दिन सवेरे वेट कर रहा था. प्रभुपाद आया. प्रभुपाद आने के पहले एक प्रभु जी आया उनसे. उनसे बोला, आप इनिशिएशन लेना है. प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको शेव करना पड़ेगा. प्रभु जी को बहुत डर लग गया. क्यों क्यों ऐसा करना है? मैं तो इंजीनियर हूँ. मैं तो ऐसा क्रॉप रहूंगा. उसको क्यों शेव करना है? उसका मन में इतना दिमाग में हो रहा है. बट फिर भी दूसरा प्रभु जी सब बीच में बोल रहे हैं, एक दफे वो 2 महीने के बाद आपको वापस आ जाएगा. आपका बाल वापस आ जाएगा. अब कितना क्यों परेशान कर रहे हैं? तो परेशान मत करना, वो अब ले लो. देन कुछ सेव किया एंड प्रभुपाद को सरेंडर किया. एंड प्रभुपाद से पूछा बाद में. प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप बताइए, मैं हेयर बाल ग्रो कर सकता हूँ? बोला है वो इनिशिएशन समय ये जरूरी है, आप बाल ग्रो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओ भाई इतना हो नो. जसमुद्दीन नंदन प्रभु एक दफे एंड देन उसके बाद शेव करने के बाद इतना वासुदेवा ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेवा शुद्ध सत्वा में इमीडिएटली पहुंच गया. क्योंकि वो समय डिसाइड किया. वो बोल रहा था, वो समय डिसाइड किया. मैं ये वो डेट्रॉइट में था, मैं दोबारा डेट्रॉइट नहीं गाऊंगा. वो महाराज प्रभुपाद को किधर जगह में मिला. मैं बोला मैं वापस नहीं जाऊंगा डेट्रॉइट. वो इंजीनियर का काम नहीं करूंगा. वो हम बैचलर ब्रह्मचारी ज्वाइन करूंगा टेम्पल. शिकागो में गया, वो ज्वाइन कर दिया. बस वापस नहीं गया मेटीरियल लाइफ में. क्योंकि वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेवा हो गया उसका. सिर्फ प्रभुपाद से प्योर अटैचमेंट से हो गया उसका. सो यही अब तात्पर्य है. महाराज से हम कितना एसोसिएशन ले रहे हैं वो बहुत जरूरी है. क्योंकि एसोसिएशन का मतलब क्या है? हम उसके वजह से हमारा अंदर खुद परिवर्तन होना चाहिए. परिवर्तन मालूम है ना? परिवर्तन होना चाहिए. परिवर्तन नहीं है, ऐसा ही कर रहे हैं तो प्रयोजन नहीं. वो बहुत बहुत जरूरी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जसमंदी नंदन प्रभु जी की जाए और गोस्वामी महाराज जी की जाए. उनके वजह से ये राजकोट टेम्पल इतना बढ़िया टेम्पल. अब वो 10,000 डिवोटीज कैन असेंबल देयर. इट इज अनबिलीवेबल. 2010 में किसी को भरोसा नहीं है, नहीं होगा. नो, कोई भी को भरोसा नहीं है. इवन डिसाइपल्स, some disciples were thinking it will come or not. बट वो वैष्णव सेवक और देवकीनंद प्रभु का इतना भरोसा है महाराज के ऊपर. उसके वजह से बिना आउटसाइड डोनेशंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिसाइपल डोनेशन की वजह से ये मंदिर आया. इतना मेहनत के आया, इतना आसान नहीं है. इतना वैष्णव सेवक का इतना पसीना निकल गया मालूम नहीं. उसका इतना हेल्थ अफेक्ट हुआ मालूम नहीं है हमको. क्योंकि हम बोल रहे हैं वो सीधा साधा आदमी है, ऐसा लग रहा है वो. बट इजली इज लाइक दैट. बट इज अ ग्रेट person. We have to understand the value. So it is very important. Don't take it for granted. Maharaj has empowered him so much. Anyway, in front of him to speak, उनके सामने में बात करने में मेरे को हक नहीं है. हक नहीं है ना? हक ठीक है ना? हक बार is correct, no? हक means what, प्रभु, हिंदी में? I think correct प्रभु जी, correct. हक नहीं है मेरे पास, हक नहीं है बात करने का. So now we'll go into the verse. So I thought I'll talk about Yashamati Nandan. It is very important. It's good. Your talk is good. Nice. अच्छा किया आपने. So now we'll go into the verse. Here, the Vasudeva is very important. That is what we have to meditate. So here, Vasudeva para Veda, Vasudeva para Makaha, Vasudeva. So here, actually there is a in connection है. ये वासुदेवा का स्टेज क्या है? How to understand Vasudeva? It is nicely mentioned in 4:3:23, 4th canto, 3rd chapter, 23rd verse. It is mentioned, Shadvam Vishuddham Vasudeva Sabditam Yediyate Tatra Puman Amavartha Satvech Dasmin Bhagavan Vasudevo Ye Dakshajo Me Namasa Vidiyate. Prabhupada writes in this, I'm always engaged in offering obeisances. This verse, Lord Shiva, पार्वती माता से बात कर रहा है. पार्वती माता
वो दक्ष, प्रजापति दक्ष, उनका तो थोड़ा झगड़ा हो रहा है उनके साथ। प्रजापति दक्ष तो ही उसको उसका सन इन लॉ लॉर्ड शिवा, उनका पसंद नहीं है, क्योंकि पार्वती माता दाक्षायणी मैरी किया लॉर्ड शिवा से, उनके पसंद नहीं है, क्योंकि वो प्योर वैष्णव है, बट फिर भी उनका पसंद नहीं है। इसलिए वो उसके पहले एक सैक्रिफाइस कर रहा था, वो सैक्रिफाइस जगत तुष्टि के लिए कर रहा था। वो समय वो एंटर किया वो सैक्रिफाइस में, प्रजापति दक्ष, वो एंटर करने के समय लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिवा दोनों सीट से उठा नहीं है, वो दोनों बेटा है। तो लॉर्ड ब्रह्मा तो ठीक है, फादर है, वो तो माफ कर दिया, बट फिर भी लॉर्ड शिवा वो सन इन लॉ है, क्यों ऐसा किया, उसका बहुत गुस्सा हो गया। एंड देन उसको इतना अफेंड किया, इतना नीचे से बात किया, बहुत नीचे से बात किया, बहुत नीचे से बात किया, ऐसा गाली, कितना बड़ा गाली, गाली बोल रहे हैं ना, गाली बोल रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे, इतना गाली बोला है, वो बहुत बेकार गाली बोला है। सो लॉर्ड शिवा तो ये वैष्णवाना में इतना शंभु है, उनके साथ ऐसा बोला है। एंड उसके वजह से क्या हुआ, उनके मन में लगा है ये ऐसा है मेरा सनी है, इसलिए दूसरा सैक्रिफाइस किया। और दूसरा सैक्रिफाइस में वो डिसाइड किया, मैं उसके नहीं बुलाऊंगा, मेरे डॉटर को नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि वो डॉटर का प्यार, एक्चुअली फादर और डॉटर का प्यार कितना होता है आपको मालूम नहीं, बहुत बड़ा होता है। हमको डॉटर नहीं है, बट फिर भी वो प्यार, इतना प्यार है, मालूम नहीं है। वो मदर और सन का रिलेशन प्यार, और फादर का डॉटर का प्यार बहुत अच्छा होता है। इवन टुडे माय फादर, हमारा फादर बोलता है, मेरा 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 बेटी जैसा नहीं, आप नहीं होगा। वो बेटी तो 3 साल पहले मर गया, बट फिर भी उसका बेटी का स्टिल याद है। सो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। बट फिर भी इधर दक्षा, क्योंकि सन इन लॉ को इतना नफरत किया, इतना नफरत बोलते हैं ना, वो नफरत किया, इसके वजह से वो बेटी, इतना प्यारा बेटी के नहीं बुलाया, तो इसलिए वो सैक्रिफाइस शुरू किया, सब किया, इसके बुलाया नहीं। उसको बुलाना है, वो पार्वती माता को पता लग गया, ये लोग सब लोग जा रहे हैं, दूसरा डॉटर्स भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, वो डेमीगॉड सब जा रहे हैं वो सैक्रिफाइस को। लॉर्ड शिवा से बात कर रहा था, वो लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं अब नहीं जाना अच्छा है, अब वो असंभव नहीं, वो संभव नहीं होगा, वो मंगल नहीं होगा, वो अब जाएंगे उधर, आपको अमंगल ही हो जाएगा, इसलिए अब नहीं जाना अच्छा है, प्लीज मेरा बात सुनो। बट फिर भी वो नहीं सुन रहा था। सिर्फ वो समय में वो बोल रहे हैं, ये वर्ष बोल रहे हैं, ये वर्ष बोल रहे हैं, मैं कौन सा स्थिति में बोल रहा हूँ, मैं मटेरियल मोड्स में नहीं बोल रहा हूँ, मैं वासुदेव पोजिशन में बोल रहा हूँ। इसलिए ये बोल रहे हैं, शिवा, लॉर्ड शिवा बोल, आई एम ऑलवेज एंगेज इन ऑफरिंग ओबेसेस टू लॉर्ड वासुदेवा इन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस ऑलवेज प्योर कॉन्शियसनेस इज विच in which the Supreme Personality of God is revealed without any covering. Apavrta. ये अपावृता मीन्स दैट इज द प्लेस, मतलब अपावृता मीन्स वो कवरिंग नहीं, कवरिंग मटेरियल कवरिंग नहीं है, बॉडीली कवरिंग नहीं है, वो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का जोड़ होता है, वो उसका ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ बीइंग वास्तव, वही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रभुपाद वो शुद्ध शब्दवा के बारे में बता रहे हैं, और शुद्ध शब्दवा कैसे हम प्राप्त करना है, उसके लिए वो सिंपल सेंटेंस बताया। वो सिंपल सेंटेंस में प्रभुपाद एक ही लाइन बोला, इन एक ही लाइन में सब कुछ बोला है, ये एक ही लाइन में सारा भागवतम का एसेंस, सार, ये सिर्फ एक सेंटेंस में है, सारा एसेंस बोल दिया है, सारा एसेंस भागवतम। अब ये सेंटेंस हम कोशिश करेंगे, हम हमारे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, प्रयत्न करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, सब जिंदगी सफल हो जाएगी। दूसरा का जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट, वो सिर्फ हम कोशिश करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करने के लिए कोशिश करेंगे। हम तो अभी तक बात कर रहे हैं, अभी कब प्रैक्टिस करेंगे बताएं हमको, हम तो, मैं तो कौन सा जन्म में मैं प्रैक्टिस करूंगा मालूम नहीं, मे बी प्लीज ब्लेस मी so that one day I have to practice this, but at least I'm speaking about it. Actually Prabhupada says at least speak about it so that one day you will do it. अब तो बात करो, बाद में एक दिन करेगा। बात तो करना है ना, सो दिमाग में थोड़ा सा हो जाएगा, अंदर जाएगा। सो क्योंकि when बात करेंगे थोड़ा अंदर जाएगा, हमारा बुद्धि का अंदर और मन का अंदर जाएगा। मन तो इतना अशुद्ध है, सो शुद्ध सत्व में नहीं है, तमोगुण में बैठा है, सो इसलिए वो थोड़ा सा जाएगा तो अच्छा है। हम यही कोशिश करेंगे। सो हम अब लोग को प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लीज दैट वन डे आई शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट, मैं अंडरस्टैंड करना है।
So Prabhupada बोल रहे हैं, in pure devotional service, one simply serves the Supreme Personality of Godhead as a matter of duty. 4 things बोल रहे हैं. Simple, matter of duty, without reason, without being impeded by material condition. चार पॉइंट्स. ये 4 पॉइंट्स हम प्रैक्टिस करेगा, जिंदगी सफल हो जाएगी. ये 4 हम भक्ति में प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएगा. सो पहले जाएंगे सिंपल. हमारा महाराज बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं. अब महाराज एक क्लास लिया 3542, उसके सिंपल बोलते हैं. सिंपल का डेफिनेशन बोलते हैं. सिंपल का मतलब महाराज बोल रहे हैं, सपोज somebody फोन कर रहे हैं हमको, आपको फोन कर रहे हैं. वो सिंपल मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन सीधा साधा आदमी, टेढ़ा नहीं. टेढ़ा बोलते हैं ना, करेक्ट. टेढ़ा इज करेक्ट प्रभु, टेढ़ा इज करेक्ट. यस प्रभु, करेक्ट. आप हिंदी बढ़िया बोल रहे प्रभु, चिंता मत करना. यू आर स्पीकिंग नाइस हिंदी. टेढ़ा, सो सीधा साधा आदमी है. फोन से नंबर नहीं देखा. महाराज बोल रहे नंबर नहीं देखो, बात करो. महाराज ऐसे ही बात कर रहा था. मैं अबू धाबी से फोन कर रहा, फोन कर रहे हैं, कौन वो से नहीं, हरि बोल, हरे कृष्णा, कौन, यू विल आस्क. दैट्स ऑल. यू विल नॉट इवन सी द नंबर में देखेगा. हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन बात कर रहे हैं, उसके साथ बात करना है नहीं बात करना है, ये प्रभु जी हमको पसंद नहीं है, उससे क्यों बात करो. वो ऐसा सोचते हैं. वो इसके साथ नहीं बात करना है, वो फोन कट करूंगा, बाद में बात करूंगा, ऐसा सोचते हैं. बट महाराज वो सो सिंपल. वो किसी का फोन आया वो फोन करेगा. वो बोल रहे हैं, ये डिवोटी आप कॉल कर रहे हैं क्योंकि आपका जरूरी बात करना है, आपसे जरूरी बात करना, इसलिए बोल रहे हैं. क्यों ऐसा आप रिजेक्ट कर रहे हैं? क्यों, सोचो थोड़ा. क्यों ऐसा सोच रहे हैं? क्यों ऐसा सोच रहे हैं उनके साथ नहीं बात करना? वो जरूरी बात कर रहे हैं, आपका कुछ सेवा मांग रहे हैं, वो सेवा आप रिजेक्ट कर रहे हैं. मतलब महाराज बोल रहे हैं आप कृष्णा को रिजेक्ट कर रहे हैं. वो ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेव नहीं हो रहे हैं. समझा ना? कृष्णा आ रहे हैं, कृष्णा का सेवा आ रहे हैं फोन से, हम कृष्णा का सेवा रिजेक्ट कर रहे हैं. क्योंकि हम कैसे बोल रहे हैं, हम सज्जन प्रिय कृष्णदास. वो महाराज बोल रहे हैं. महाराज का एंगल ऑफ विजन इतना बढ़िया था. एक एक्शन में वो ऐसा बोल रहे थे. क्यों, देखो, ये सिंपल मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा, नो टेढ़ा. टेढ़ा होएगा तो कृष्णा का सर्विस रिजेक्ट करेंगे हम. कृष्णा का भक्ति का सेवा रिजेक्ट करेंगे. सेवा रिजेक्ट करेंगे मीन कृष्णा को रिजेक्ट करेंगे. किधर कृष्णा का मीट करेंगे इस दुनिया में? ये जन्म में कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे. तो यही इंपॉर्टेंट है. सिंपल मीन्स नॉट एजिटेट अदर्स, मतलब दूसरों का एजिटेट मत करना. यही ऑल्सो मेच्योरिटी बोलते हैं महाराज. पक्वा होना चाहिए, पक्वा एंड मेच्योरिटी. मतलब एक दफे क्या हुआ अबू धाबी में, एक्चुअली 2009 लास्ट टाइम महाराज आ रहा था. उनका वो पूर्ण प्रजपु का घर में रहता था ऑलवेज. वो तो ब्रह्मचारी प्रभु जी, माता जी इंडिया में था बच्चे के साथ. सो चेन्नई में प्रभु जी अबू धाबी में था, काम कर रहा था. सो महाराज उनके घर में रहता था 2002 से 2009 से. सो हमेशा उनका घर, प्रभु जी छुट्टी ले रहे हैं ऑफिस से, 3 दिन महाराज आएंगे, 3 दिन वो छुट्टी ले. वो समय क्या हुआ, महाराज वो एक दिन आया था 2009, जून 2009. महाराज का प्रोग्राम चल रहा था. उनका ऑपोजिट वाला वो सीधा कंप्लेंट किया कंपनी से, क्योंकि वो संगीतन का नॉइस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं. महाराज बोल रहे हैं संगीतन स्टॉप करो, वो मृदंग स्टॉप करो, वो एजिटेट मत करना. ये डिवोशन सर्विस है, उसको स्टॉप करो. डिवोशन सर्विस मतलब हम भागवतम पढ़ो, सब पढ़ो, ये कीर्तन वगैरह, ये मृदंग वगैरह, ये करताल, आप जाके आपको नाचना है, आपको जंप करना है, अब तो द सीलिंग आपको जंप करना है, सीधा जाओ. अब वो समय राजकोट नहीं था, द्वारका में छोटा था. आप जाओ मायापुर जाओ, आप वृंदावन जाओ, आप इतना पुश जंप करो. बट इधर भागवतम पढ़ो. सो महाराज डोंट डिस्टर्ब, दिस इज सिंपल मीन्स डोंट एजिटेट अदर्स. एंड महाराज क्या किया है, उनके घर से हम उसका एजिटेट कर रहे हैं. महाराज का बहुत बढ़िया है, वो बैचलर्स का घर रहना है, अच्छा है. बट फिर भी पहले था स्वयं सरस्वती प्रभु का घर में था, वो स्वयं सरस्वती प्रभु में माता जी भी था. महाराज को थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, क्योंकि माता जी का रहना उनका अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु जी ऑफिस जाएगा, शाम को आएगा, नो. So sometimes he comes direct. When Maharaj comes, he comes in the afternoon to serve prasad. So उनका थोड़ा इनकन्वीनियंस था, इसलिए मूव किया पूर्ण प्रजपु का घर. तो इसलिए क्या हुआ, महाराज वांट्स टू, महाराज से हम डिस्टर्ब होंगे, हमको इनकन्वीनियंस होंगे,
फिर भी दूसरों को एजिटेट मत करना, वो करो। महाराज आपका सारा सामान सब निकल गया स्वयं प्रभु का घर। स्वयं प्रभु का घर वो माता जी का इच्छा था, वो माता जी का इच्छा, राधाचरण माता जी की इच्छा था that from महाराज has not come from 2002, उनका घर में रहना ही नहीं, वो आएगा प्रोग्राम रहेंगे बट उनका घर में रहना ही, he didn't stay in the house night। so उनका वही उनका अंदर है वो आशा, महाराज का मालूम पड़ी है। so महाराज ये क्रिएट किया, वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो उधर से उधर प्रोग्राम पे। सी देखो इतना महाराज डोंट एजिटेट, दिस इज सिंपल, सिंपल मींस डोंट एजिटेट अदर्स एंड देन डू नॉट थिंक टू मच, डू नॉट थिंक टू मच मींस हम तो भक्ति में इतना सोचते हैं, वो सोचने का नहीं है, वो अब बहुत बहुत जरूरी है। महाराज बोल रहे हैं सोचने का, इतना सोचने का नहीं है, ये सोचना वो सोचना नहीं है, सीधा। एक दफे प्रभुपाद आया था एक डिवोटी, और डिवोटी को बोला चैंट करना हमेशा, चैंट ऑलवेज, है ना, बोलता है ना हरे कृष्णा आप हमेशा जप करो, जप करो, जप करो, हमेशा जप करो। सो इसलिए एक दफे एक डिवोटी था, वो वृंदावन में था, वो एक कुटीन में जाके बैठ के चैंट कर रहा था। वो कितना राउंड्स, 64 राउंड्स, 80 राउंड्स, 90 राउंड्स, 100 राउंड्स। एंड सब डिवोटीज है ना, वो अदर गॉड ब्रदर्स ऑफ डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद, वो जाके प्रभुपाद से बोला ये 100 राउंड्स कर रहे हैं, 200 राउंड्स कर रहे हैं, 90 राउंड्स कर रहे हैं, रोज ये कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं महाराज, प्रभुपाद इतना बड़ा सेवा कर रहे हैं कृष्णा का, कृष्णा में सेवा में। प्रभुपाद बोल रहे हैं मैं बोला जब करो भाई, मैं बोला 16 राउंड्स, और उसके बाद सेवा करना है, मुक्ति पोषण करना है, प्रीचिंग करना है, सब कुछ काम करना है। ये सिर्फ चैंटिंग करेगा तो उसका मकसद ये क्यों चैंटिंग, क्यों के लिए उसका नाम चाहिए, फेम चाहिए, प्रतिष्ठा आशा चाहिए, उनका भक्ति का जरूरत नहीं है। वो कृष्णा का ट्रांसजेंडर प्लेन में मीटिंग वासुदेवा नहीं चाहिए, उनका क्या चाहिए, उनका नाम चाहिए। इसके वजह से आप लोग बोल रहे हैं उसको इतना तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं मतलब आपको इतना प्रेज कर रहे हैं उन लोगों का। सो इसलिए उसको तारीफ चाहिए, मेरे से तारीफ चाहिए, हम लोगों को तारीफ चाहिए, उनका भक्ति बढ़ाना नहीं है। वो ट्रांसजेंडर प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेवा नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए उनका कृष्णा का नहीं चाहिए, उसका मन में सिर्फ नाम प्रतिष्ठा आशा है। सो इसलिए ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है, अभी पक्वा है, पक्वा नहीं है, मेच्योरिटी नहीं है। महाराज प्रभुपाद कंटेम्प्ट that he is not going, and that person left afterwards the movement। so इसलिए आप ऐसा करना है, वो not think too much means ऐसा वैसा टेढ़ा मत थिंक करना है। एंड ऑल्सो दूसरा है, वो एक प्रभु ऐसा सेव कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नहीं ऐसा मत करो, ये करो वो करो, हमको उसका कैसे करना है उसको छोड़ना है, हम दूसरा इंटरफेरेंस नहीं करना, क्योंकि उसका लिमिट है ही ऐसे, उनका जबरदस्ती नहीं करना। सो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, नॉट थिंक टू मच मीन्स वी शुड नॉट इमिटेट, दूसरों का इमिटेट नहीं करना, मैं ऐसा करूंगा मैं ऐसा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा। आप अपने इंडिविजुअल लिविंग एंटिटीज, आप अलग है, सज्जन प्रिया अलग है, ईच वन इज अलग, स्वयं का प्रकाश प्रभु अलग है, मनोहर कृष्णदास वो अलग है, एवरीबॉडी इज अलग, वो दैट्स व्हाई ट्रांसेंडेंटल वैरायटी, मतलब वैरायटी होना चाहिए, ईच वन इज यूनिक। वो एक दफे देवी प्रभु आया था अबू धाबी से, हम सब लोग बोल रहा था प्रभु जी वी वांट हंड्रेड्स ऑफ देविकीज, देन प्रभु देवी प्रभु बोल रहा था नहीं हंड्रेड्स ऑफ देविकी यू गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट, there should be so many people, not one Devaki is enough. There should not be multiple Devakis. So this is very important. So that's why we should not think too much on the on. That means we are not simple. We are complicated. So and best example is the Brahmana. Brahmana in South India, no Chaitanya Mahaprabhu बोला है भगवद गीता पढ़ो, बस सुन लिया, वो उसका पढ़ना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी उल्टा किया, वो जस्ट रो रहा था क्यों, कृष्णा अर्जुन का सेवा कर रहे हैं। सो इसलिए वो he was riding the chariot and serving अर्जुना, उनका मन में क्यों वो रो रहा था अर्जुन। तो चैतन्य महाप्रभु said simply you have accepted my instructions। so simple means we have to accept instructions simply, complicate मत करना, ये complicate क्या, वो devotee है ना, वो disciple Prabhupada से, so that's why we have to important, this is very important। and one more thing on simple means one pointed attention, मतलब एक ही भव्यसात्मिका बुद्धि एक है पूर्णंतर, बहुशाखा अनंताशी बुद्धयो अव्यवसायिना,
ये व्यवसायत्मक बुद्धि, वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए। मतलब एक ही एरिया में कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत जरूरी है। चैंटिंग करना, भागवतम करना, ये सेवा करना, ये सेवा करना। वो एक सेवा में लगा कि दूसरा सेवा में लगा कि दूसरा, मीन्स वी आर नॉट सिंपल, वी आर कॉम्प्लिकेटेड। ये सर्व खत्म कर दो, उसके बाद दूसरा सेवा, ऐसा सोचना है। ये सिंपल सिंगल पॉइंटेड अटेंशन। तो बेस्ट एग्जांपल है ना वो अर्जुनन का। अर्जुना क्या किया, वो एक दफे द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को बहुत पसंद हो गया, क्योंकि अर्जुना इतना बहुत बड़ा आर्चर था, सब्यसाची था, बहुत बड़ा आर्चर था। वो रात में वो एक दफे खाना खा रहा था, खाना खा के, मैं रात में बिना आंख से मैं खाना खा सकता हूँ कि देन मैं आर्चरी भी कर सकता हूँ। सो इसमें कोशिश किया। द्रोणाचार्य एक दफा साउंड आ रहा था, एरो जल रहा था, ये ट्री में हिट कर रहा था। वो देखा कौन कर रहा है, वो देखा अर्जुना प्रैक्टिस कर रहे हैं बो एंड एरो। वो बहुत पसंद हो गया, उसका बहुत पसंद हो गया। वो बोला बहुत प्यारा डिजाइन। वो हमेशा उसका प्यारा प्यारा बोल रहा था। वो द्रुपद को पकड़ा है। वो दुर्योधन ट्राई किया, द्रुपद महाराज उनका थोड़ा झगड़ा हुआ। वो झगड़ा में द्रुपद महाराज पकड़ना है, पहले करना दुर्योधन वो सब गया द्रुपद महाराज के साथ लड़ने के लिए। वो लड़ने में हार गया, वो सब पकड़ गया। और करना क्या किया, भाग के चला गया उधर से दुर्योधन को छोड़ के चला गया। दुर्योधन को पकड़ा। देन इसलिए बाद में द्रोणा बोला अर्जुना यू आप जाके उसको उसको रिया कर दो और द्रुपद को पकड़ का। और द्रुपद को पकड़ कहा है, पकड़ को आएगा, बहुत पसंद हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा जैसे। इसके वजह से एक दफे क्या हुआ, दुर्योधन सब लोग देख रहा था, क्यों ये प्रभु जी, ये द्रोणा आचार्य ये उसको क्यों इतना प्यार कर रहे हैं, हमारा तो इतना प्यार नहीं कर रहे हैं, ये डिसेबल को इतना प्यार कर रहे हैं। सो इसलिए सीधा वो उसका अंदर ईर्ष्या था, वो ईर्ष्या ना इनवी हुआ है। तो वो उसके पास गया, द्रोणाचार्य महाराज आप हमेशा क्यों अर्जुन को वो ऐसा चाहिए, क्यों उनका, क्यों मैं पसंद करता हूँ इतना ज्यादा, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपके लिए एक टेस्ट होगा। सो सबको बुलाया, बुलाया सब, शाकादेव, नकुला, युधिष्ठिर महाराज सबको बुलाया। भीमा भीमा बोला एक बर्ड रखा है ट्री के ऊपर, एंड बोला है वो वो आंखें का, बर्ड का आंखें का मैं हिट करना। वो सबको युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर बोला आप क्या देख रहे हैं, मैं ट्री देख रहा हूँ, वो ब्रांचेस देख रहा हूँ, वो बर्ड देख रहा हूँ, सब कुछ फेल हो गया। और नकुलन को बुलाया, वो सब कुछ बोल रहा है युधिष्ठिर। वो दुर्योधन आया, दुर्योधन का पूछा, दुर्योधन आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या क्या देख रहा हूँ, मैं ये ट्री देख रहा हूँ, ब्रांचेस देख रहा हूँ, ये बर्ड देख रहा हूँ, उसका आंख देख रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, मैं युधिष्ठिर को देख रहा हूँ, ये आकाश देख रहा हूँ, आकाश को ऊपर ईगल चल रहे हैं देख रहा हूँ, सब उसके ऊपर क्लाउड्स देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। बोला आप फेल हो गया। देन अर्जुना को बुलाया, अर्जुना को बोला आप क्या देख रहे हैं, मैं बर्ड का आंख को देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं, बर्ड का आंख को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, बर्ड का आंख, अभी लगाओ। इसलिए बोला है ये वन पॉइंटेड अटेंशन। सो ये सिंपल मीन्स वी हैव टू बी वन पॉइंटेड अटेंशन, दिस व्हाट। सो सिंपल वी सॉ, ये हम सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। Agitate others, we should not agitate others. Simple, and third, we should not complicate in the devotion service. That is what we saw. And then one point at attention. This is what we understand from simple. Now, next we will go to, and Prahlad Maharaj as a matter of duty. Then next Prabhupada writes simple and a matter of duty. Duty का मतलब हमारा कर्तव्य क्या है, रोज हम ऑफिस जाना है जाएंगे, अब हमारा बच्चों का स्कूल फीस पेमेंट करना करेंगे, वो सब एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी हम करते हैं। बट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी वी डू फॉर कृष्णा, नो वी डोंट डू इट, वी डू इट एज अ पेन। क्योंकि मतलब मंगला ठीक है, उठना है बहुत मुश्किल है, 3:30 बजे क्यों अब कृष्णा कॉन्शियस में आया, बहुत लंबा प्रॉब्लम है। इतना साल कर रहे हैं, कितना जन्म से हम करेंगे ये मंगला आरती, ये चैंटिंग करना है, ये भागवतम करना है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता, वो कृष्णा का हमारे सामने नहीं आता। वो सब ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर होता है, ट्रांसजेंडर क्या है हमको मालूम नहीं है, वो सब अब दिमाग में होता है। क्योंकि हम वी आर नॉट डूइंग एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, वी आर डूइंग इट आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ फियर। हम भया किसके, इफ आई डोंट डू इट, इफ आई डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस स्पिरिचुअल मास्टर, उसके वजह से ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। सो इस में दिमाग में ऐसा हो रहा है। सो बट वी हैव टू डू इट एज अ मैटर। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं वेरी नाइसली 7:10:6, नान्य तबे योर अर्थो राज से विक्योर हुआ,
यू आर नेचुरली माई मास्टर एंड आई एम नेचुरली योर सर्वेंट, मतलब नेचुरल होना चाहिए, देन इट बिकम्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी। सो यही हम सोचना है ऑलवेज। सो ये मैटर ऑफ ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी हैव टू डू आवर ड्यूटी, बट क्योंकि हमको ये राधा कृष्णा का महाराज बोल रहे हैं ये विग्रह है, ये कृष्णा है, उनसे बात करना है, हम नहीं बात करेंगे। वो बोले सिर्फ मार्बल स्टोन, वो मार्बल स्टोन दिखा एक तो मार्बल स्टोन मिलता है। सो वो कृष्णा है तो कृष्णा है, कृष्णा है उधर। हम हमारा दृष्टि कैसा है, हमारा दृष्टि कृष्णा को मिलने का नहीं है, हमारा दृष्टि ये काम होना है, ये काम होना है, ये काम होना है। हमारा स्मॉल स्मॉल इंटरेस्ट इज टू गेट बेनेडिक्शन फ्रॉम कृष्णा, वो हमारा इंटरेस्ट उनका सेवा करने का नहीं है। सो किसा हम सेवा करूं वो हम नहीं सोचते, दिस इज नॉट, वी आर नॉट डूइंग एज अ ड्यूटी। इसका वजह से ये प्यार नहीं होता, इसलिए हम ट्रांसेंडेंटल प्लेन में मीटिंग वासुदेवा नहीं होता। सो मैटर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन मीन्स मतलब हमको वी शुड नॉट बी एनी मोटिव। मोटिव रीजन मीन्स मोटिव, मतलब है हम अभी क्या कर रहे हैं, मोटिव क्या है, हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम हमेशा ईर्ष्या अपेक्षा है। अपेक्षा मीन्स भागवतम टेस्ट निरपेक्ष, बट मेरा अपेक्षा है, हमेशा अपेक्षा होता है ये काम होना चाहिए, ये हम हमेशा हम सोचते हैं। इसके वजह से हमारा भक्ति इतना बड़ा नहीं। एक एग्जाम्पल बोलता हूँ, शुद्ध सत्वा मीन्स विदाउट एनी कंटामिनेशन। हमारा महाराज बोल रहे हैं ऑलवेज वी गो फॉर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑल्सो। भक्ति में क्या चाहिए, सेवा में कुछ, हाँ ये प्रभु जी हमको बोल रहे हैं अच्छा काम किया, ये अच्छा लेक्चर दिया, ये अच्छा सेवा किया, वो हम हमेशा हम अपेक्षा करते हैं। इसके वजह से क्या हुआ, वो कृष्णा से प्यार नहीं होता, वो इसके वजह से ट्रांसेंडेंटल प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेवा नहीं होता, क्योंकि हम कृष्णा में सेवा में नहीं, हमारा सेवा में हम कृष्णा कृष्णा को हमको सेवा करना है, यही मन में हमारा मन में है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। प्लीज प्लीज प्रभु जी से माता जी, हम कृष्णा को कैसा सेवा करना है मीन्स हमारा ऊपर नहीं थिंक करना, हमारा ऊपर हम कभी भी थिंक करना, हमारा ऊपर नहीं थिंक करना है, हमारा काम कृष्णा देखभाल करेगा अपने आप, सिर्फ दूसरों का देखना है, दूसरों का सेवा करना है, और कृष्णा का कैसा सेवा करो, दूसरा डिवोटीज का कैसा सेवा करो, यही स्थिति होना चाहिए। यही स्थिति बहुत जरूरी है, यही नहीं है तो हम कॉस्टलेस डिवोशन सर्विस नहीं कर सकते। मीन्स हमारा मोटिव हो जाएगा, हमेशा भक्ति बनाने में मोटिव हो जाएगा, ये काम करेगा तू कैसे कर रहे हैं, ये ना हमेशा होता है। मैं पहले ग्रंथराज में लिख रहा था, वो कितना हम अप्रिशिएशन लेटर्स आता है वो देखते हैं, क्योंकि हमको लेटर्स आता है वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये प्रभु जी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, और क्लास लेने के बाद क्या चाहिए, अप्लास चाहिए, वही हमारा बीच में। इसके वजह से क्या हुआ, हमारा भक्ति में विदाउट एनी रीजन वी आर नॉट डूइंग। सो आई विल टेल यू नाइस एग्जांपल, यू नो प्रभु जी इस ब्रजविलास प्रभु इज अ डिसाइपल ऑफ प्रभुपाद, वो सियाटल में वॉशिंगटन में, वो सिंपल टेम्पल मैनेजमेंट इज डूइंग सिंगल हैंडेडली, क्या मैनेजमेंट अनबिलीवेबल, कुकिंग कर रहा था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, ऑल्टर डेकोरेशन कर रहा था, डेडी डेकोरेशन कर रहा था, अभिषेक कर रहा था, मॉर्निंग मंगलारती में बैठा है, कुकिंग सेवा, प्रसादम सेवा, कटिंग वेजिटेबल सेवा, all sevas you will do, and almost you will work almost morning 5 3:30 4 you will come to the temple, and you will go only in the night 10:30 11 or 12, सब सेवा करके खत्म करके जाए, क्योंकि उनका मन में सेवा करना है बस कृष्ण। इतना वो ब्रजविलास प्रभु इतना बढ़िया डिवोटी है, वो ऐसा डिवोटी नहीं है वो, क्योंकि एक दफे हमारा प्रभु जी है ना, वो प्रभु नरहरि प्रभु हमारा गॉड ब्रदर है चेन्नई में, he was there with him in Seattle at the time he was working Washington में। so एक दफे क्या हुआ, this प्रभु जी went for a जन्माष्टमी का दिन, जन्माष्टमी का दिन whole night प्रभु जी did not sleep है, whole सेवा कर रहा था, अगले दिन भी, मतलब 24+12, एंड क्योंकि नाइट को 12 बजे खाना खाना है, क्योंकि फास्टिंग का टाइम हो गया, बिकॉज अगले दिन फास्टिंग करना है प्रभुपाद जी का जयंती, इसलिए 36 आवर्स विदाउट टेकिंग वाटर एंड ड्रिंक्स सेवा कर रहा था, कुकिंग कर रहा था, सर्विंग कर रहा था, कैन यू इमेजिन 36 आवर्स। 36 आवर्स के बाद फीस्टिंग में प्रसाद हम लिया, वो सबको लेने के बाद 3 बजे
1 बजे हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया, 3 बजे सब सारा डिवोर्स 3 बजे का है। देखो इतना विदाउट एनी रीजन, बिकॉज उनका एक ही मन में कृष्णा में, कृष्णा का सेटिस्फेक्शन करना, कृष्णा का कैसे मैं सेटिस्फाई करूं, यही हमारा। और डिवोटीज का सही से सेटिस्फाई करो, ये सारे डिवोटी से कृष्णा आएंगे, उनका कैसे सेवा करो। तो यही मन में हुआ है। वो उसके वजह से क्या हुआ, अभी भी इतना बड़ा प्रभु ने उनके बारे में वो एक और पास्ट है ना, बताएंगे लेटर, and time comes I will talk about it. So this is what we have to understand. Without any reason and without any condition. Condition means we should not put any condition. And Prabhupada is the best person we can understand. Prabhupada का इतना बहुत बड़ा, बहुत गहरा टाइम है, क्योंकि वो झांसी में रह रहा था। झांसी में वो 1950 में लीग ऑफ डिवोटी शुरू किया, सब फेल्यूर हो गया। और अमेरिका में गया स्टीमशिप में, वो एक दफे क्या हुआ, उसका थोड़ा अप्रूवल्स चाहिए, क्योंकि टिकट लिया सुमति महाराज जी मैडम से लिया, बट फिर भी उसका एक ही प्रॉब्लम है, कोई अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर अबाउट 10-20 डिपार्टमेंट्स सो दैट ही कैन गो टू अमेरिका। सो एक एक डिपार्टमेंट गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। एक दिन क्या, कृष्ण इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, क्यों इतना मेहनत करके जाना है, उसके मन में आ गया प्रभुपाद का। बट फिर भी मैं कोशिश करूँ, कृष्णा के ऊपर ध्यान किया, 1 मिनट ध्यान किया, उसके वजह से एक बंगाली डिवोटी आया, वो कलेक्टर का वेरी क्लोज फ्रेंड था, वो बड़ा बड़ा रेवेन्यू ऑफिसर, वो आया, बोला आप स्वामी जी आप किसके लिए आया, वो आईएएस ऑफिसर मिलने आया। वो बोला आप किसके लिए आया, मैं ये पर्ची अप्रूवल लेना है, इसके वजह से ये डिपार्टमेंट से लेना, आप इधर वेट कर दीजिए, आप स्वामी जी है, आप क्यों तंग कर रहे हैं, आप ये रूम में बैठ लीजिए, मैं सब करूँ। वो सारा डिपार्टमेंट जाके वो खुद लेके आया, वो इसके वजह से हमारा प्रभुपाद वाज एबल टू कम टू अमेरिका। व्हेन ही केम टू अमेरिका इट वाज अ फेल्यूर। वो देखो इतना फेल्यूर है। 1966 में, आई थिंक May 21, 1966, यू नो, वो दिन वो अरेंजमेंट किया, 20-25 डिवोटीज वर सपोज्ड टू कम। प्रभुपाद मेड प्रसादम आल्सो बनाया, सब कुछ तैयार है, वो लेक्चर के लिए प्लेस रखा है, वो सब अरेंज किया, कोई भी डिवोटी नहीं आया, कोई भी डिवोटी नहीं है, मटेरियल कंडीशन अच्छा नहीं था, कोई भी डिवोटी नहीं है। प्रभुपाद फिर भी, उसके बाद एक डिक्टाफोन था, एक टेप रिकॉर्डर था, बस कुछ नहीं, और कर्तल सा एक हारमोनियम था, ये भागवतम का है। वो सिर्फ 1.5 घंटा, 1.5 hours ही रीचिंग टू द वॉल्स। कैन यू इमेजिन? अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इधर नहीं है तो कैसे हमारा स्थिति होगा, कोई भी नहीं है अभी, 21 प्रभु जी नहीं है, तो कैसे प्रीच करूंगा, मैं नहीं प्रीच करूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारा कॉन्शियसनेस है मटेरियल कंडीशन, इतना आदमी चाहिए, 20 आदमी चाहिए, 40 आदमी चाहिए, वही हमारा मन में दिमाग में चलता रहता है। वो उनका नहीं है, वो इतना मटेरियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इतना मेहनत किया। वो डिवोटी सब आया नहीं आया, वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया। प्रभुपाद नेवर कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद का एक ही है, हम कृष्णा का सेवा करना है, हम गुरु का प्लीज करना है, गुरु को कैसे प्लीज करूं, यही उनका मकसद है। गुरु का सेवा, गुरु हमको आज्ञा दिया है, ये अमेरिका जाके प्रीच करना है, यही हमारा मकसद है, बस अल्टीमेट गोल ऑफ परांगति की। तो उसके लिए देख कर, वैसा सोच के उनके मन में है। सो इतना कंडीशन अच्छा नहीं, सो इसलिए हमारा कंडीशन बहुत बेकार हो जाएगा। एक दिन तबीयत नहीं हुआ, एक दिन ये हमारा वाइफ का ठीक नहीं हुआ, हमारा फादर का ठीक नहीं होगा, मदर का ठीक नहीं होगा, कोई भी इम्पीडियंट कंडीशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, बट फिर भी हम हमारा जब करते रहना है, हमारा मंगलारती चलते रहना। एक दफे आई रिमेम्बर, एक दफे ट्रेन में जाके हम कैसे मंगलारती करो, मेरे को अब नहाए नहीं है। एक दफे हम जा रहा था, 2003 दिसंबर 2003, दिल्ली से वृंदावन ट्रिप खत्म करके हम द्वारका टेम्पल ओपनिंग के लिए जा रहा था दिसंबर, इट वाज वेरी कोल्ड। सो इसलिए वो दिन ट्रेन में 2 दिन ट्रेन था, ऑलमोस्ट 30-40 आवर्स ट्रेन। सो नेक्स्ट दिन वो हम वेट कर रहा था, मॉर्निंग हम नहाए नहीं, सिर्फ ब्रश किया। सो कैसे करेंगे,
फिर भी एनी कंडीशन वी हैव टू डू। अब वो दिन कालचक्र प्रभु एंड सुदर्शना माता जी 4:30 इन द मॉर्निंग संसार दावा कर रहा था। आया नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वॉश किया, टीथ वॉश किया, संसार दावा चैंटिंग शुरू किया। 5:30 हम सिर्फ देख रहा था। हम ऐसा भी कर सकते हैं। मैं प्रभु जी से पूछा, पैसा क्यों प्रभु जी? महाराज बोला है एनी कंडीशन मंगल आरती करना है, कैसे भी स्थिति है मंगल आरती। अब डेथ हो गया तो नहीं कर सकता है ना, बट इधर भी कोई भी कंडीशन में करना है। आपका डेथ हो गया नहीं कर सकता, अब तो शव हो गया तो नहीं कर सकता, बट फिर भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए वी हैव टू डू नो मटेरियल कंडीशन फ्रॉम देयर, यही मन में होना चाहिए। एनी कंडीशन वी शुड बी एबल टू डू द डिवोशन। दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम महाराज जी। महाराज खुद किया। महाराज एक दफे आया, फास्ट टाइम हम शेयर करेंगे, हम क्लोज करेंगे। महाराज एक दफे आया 1:30 बजे अबू धाबी, रात को 1:30 बजे आया। 1:30 बजे आके एक 2 घंटा चेस्टेसमेंट हुआ। इतना चेस्टेसमेंट किया, इतना डाटा है, कभी नहीं देखा ऐसा डाटा। बोला आप लोग कितना दिन ड्रामा करेंगे, कृष्णा कॉन्शियस ड्रामा। कृष्णा कॉन्शियस ड्रामा हमको पसंद नहीं है, कब सुधरेंगे आप लोग? कितना 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 डाटा सब लोग को 1:30 बजे डाटा सुना पड़ा सबको। सबको सबको शक्ल छोटा हो गया। किसी को सबको सबको मेरा मन में क्या है, महाराज आएगा, आपका बच्चा कैसा है, आपका फादर कैसा है, ऐसा पूछेगा, ऐसा सोचा है। महाराज कुछ नहीं पूछा, डाटा है, बहुत डाटा है। एंड 1 घंटा एंड महाराज सबको 5 चैप्टर तक भगवत गीता सुनाया, सबको पढ़ना बोला है, तो हम सब लोग पढ़ा है। 3 बजे हो गया। 3 बजे महाराज बोला अभी 4:30 हो गया। 3 बजे अबू धाबी में इज 4:30 इन इंडिया 4:30 मंगलाती करो। सो पूर्ण मंगला वो नहाया, जाके नहा के लेके आया और आरती किया 4:30। प्रभु महाराज बोला मंगलाती हो गया, अब सब मंगल हो गया, अब लोग सो जाओ, अब जाओ। महाराज किधर से ट्रैवल कर रहा था? महाराज को उम्र आपको 2007 में 87 ईयर्स ओल्ड था। वो किधर से ट्रैवल कर रहा था? पहले नासिक से मुंबई, मुंबई से अबू धाबी। वो सोया नहीं, 1 मिनट भी सोया नहीं। मेरे को एक दफे जून 2009 में महाराज के साथ जा रहा था। मेरे को एक बहुत बड़ा भाग्य मिला, फर्स्ट टाइम महाराज के साथ प्लेन में बैठ के। उस समय महाराज कंप्लीटली अवेक, स्लीप नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही वाज देयर। बट हम महाराज के बाद में बाजू में बैठा है, मैं सो गया। महाराज का सेवा करना है, महाराज को कुछ देना है। महाराज को पूछा महाराज ये लेंगे? महाराज से आई डू नॉट टेक एनीथिंग, नथिंग। some chivda was there to be given. I asked 3-4 times. Maharaj said no. 1:32 I slept. I'm तो सो गया। महाराज 1 मिनट भी सोया नहीं। And next day morning he was traveling from Bombay to Nashik. Maharaj was very fresh because उनका ट्रांसेंडेंटल प्लेन में ऑलवेज मीटिंग वासुदेव। सो हमारा नहीं है, इसलिए हम सफर कर रहे हैं। तो इसलिए हम प्रयत्न करना है। महाराज इतना कर रहे हैं हमसे, महाराज से थोड़ा सा शिक्षा लेना है, थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो महाराज से प्यार, हमारा प्यारा होगा। सो दिस इज द मेन प्लेन ऑफ मीटिंग वासुदेव। हरे कृष्णा। भागवतम ग्रंथराज की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंद। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी एनी क्वेश्चंस? वो श्याम सुंदर प्रभु है, बहुत बड़ा डिवोटी है। श्याम चरण प्रभु, वो सीनियर डिवोटीज हमारे साथ बैठा है, वो सुंदर डिवोटीज बैठा है, उनके सामने बात करना मेरे को I am feeling ashamed to talk in front of Sham Sundar Prabhu, Sham Charan Prabhu, senior devotees. Please forgive me, Prabhu. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी आपकी एक कंप्लेंट करनी है। हरी बोल। हाँ बोलो प्रभु। प्रभु जी आवाज आ रहा है मेरा? यस प्रभु, यस आपकी कंप्लेंट करनी है। क्या प्रभु? क्या कंप्लेंट है? कंप्लेंट। हाँ, व्हाट कंप्लेंट? कंप्लेंट बोलू ना? बोलो बोलो बोलो, मैं समझ गया। हाँ आपका आप हाँ बहुत बढ़िया हिंदी बोल रहे हैं, फिर भी आप बोलते मेरे हिंदी आता नहीं, हिंदी नहीं आता, हिंदी आता नहीं है। हाँ ये ठीक नहीं है प्रभु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने तो आनंद लाया हमको तो आनंद में रहा। महाराज जी की सब स्टोरी, हाँ कि ट्रांसजेंडर प्लेन का सही अर्थ आपने बताया कि किस तरह गुरु महाराज जी का प्रयत्न करना चाहिए। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर बोलिए। अभी आपकी सेवा चालू रखनी है, बहुत ही सुंदर था।
आपने Thank you. हार्ट टचिंग था। थोड़ा आपका पहला 15 मिनट आपका थोड़ा श्लोक में गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. और नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, आप ज्यादा ही बोल सकते हो समय, ऐसा नहीं 7 बजे कंप्लीट करना है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम स्टॉप चलिए। करेंगे अभी तो एक अच्छा है क्वेश्चन, प्रभु। हाँ वो भी एनी क्वेश्चन, चलेगा, वो भी चलेगा, वो सही सही बात है आपकी। तो एनी बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चंस? प्रभु जी। या प्रभु, यस, एनी क्वेश्चन क्वेश्चन तो इतना ही एक ही है प्रभु जी, कि आपने कहा कि हम लोग लास्ट में कहा कि महाराज जी की हम कॉपी नहीं कर सकते, वो तो बहुत ट्रांसेंडेंटल इसमें थे, लेकिन हम प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे प्रयास में भी प्रभु हम लोग बहुत पीछे हैं, हम बहुत ढीले हैं। बार बार हमको मटेरियल मटेरियल सब्जेक्ट में अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह हम हमारे गुरु महाराज को ज्यादा समर्पित हो सकते हैं, सरेंडर हो सकते हैं? हाउ वी कैन बिकम मोर सरेंडर गुरु महाराज, प्लीज। Very good question, Babu. Excellent question. But I'm not qualified to answer this question. But anyway, I will try. Prabhu, actually, Maharaj बोल रहे हैं. Actually, there is in the Bhagavatam 284, Prabhu. That is the best verse we can think about. Srinmata Shuddhaya Nityam Granthasva Chacheshtam Kalena Nati Dirgena Bhagavan Vishadayadi. Prabhupada Maharaj बोल रहे हैं ग्रंथस्थ स्वचेष्टितम मीन्स अपना आप खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मन में वो मटेरियल डिजायर्स तो रहेंगे, बट फिर भी क्या होता है ना, ये भक्ति ऐसा है, बट वी हैव टू प्रयत्न करना है. व्हाट वी हैव टू डू इज एक्चुअली षण्मता श्रद्धया नित्यम. षण्मता मीन्स ऑलवेज एंड कंटिन्यूअसली, मतलब हमका स्टॉप नहीं होना चाहिए. मंगलारती करना है. एक दिन ना हमको मन में आता है, कभी कभी मेरे मन में आता है, हमेशा आता है, 3:30 आएंगे, क्या फायदा 4:30 का मंगलारती करने का, इसके क्या फायदा मिलेगा, हमारा कितना बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, कितना हमको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना, ऐसा सोचते हैं हम. बट फिर भी मन में सोचो ऐसा होगा, बिकॉज क्योंकि हम हमारा शरीर ऐसा है, हम शरीर तत्व में, महात्मा तत्व में ले, बट फिर भी मेहनत करके सम और अदर, इवन इफ यू आर कंटामिनेटेड, यू डू दिस बिकॉज कृष्णा इज शुद्ध सत्वा. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू इम्प्रूव, बट ओनली थिंग श्रद्धया श्रद्धया नित्यम, वो हम करना. हमारा काम क्या है, वी हैव टू डू द भक्ति श्रद्धया नित्यम ग्रंथस्तु सुचेषित, मतलब हम ये सीरियस लेना है. मतलब प्रभु जी माता जी हम क्या कर रहे हैं ना, मेन प्रॉब्लम हम अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब वी आर नॉट रिफ्लेक्टिव. रिफ्लेक्टिव इज द वर्ड. रिफ्लेक्टिव मीन्स रोज. गोपाल कृष्ण प्रभु एक दफे बोल रहा था क्लास में, आई थिंक रोज अब क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक किया वो सब लिस्ट करो रोज. कृष्णा के पास, महाराज के पास, महाराज ये मिस्टेक किया, ये मिस्टेक किया, ये मिस्टेक किया, so, महाराज इसके माफ करो, इसके माफ करो, आई कैन नॉट रिपीट. So at least 10 items, at least 2 you should not repeat tomorrow. Like that we have to work out. It is a slow process. It is shanai shanai. It is not that tomorrow it will happen. Detachment will not come tomorrow. Attachment to Krishna will not come immediately. It's a slow process. But it may take janmas. Doesn't matter. Maharaj says, as long as we are in the plane of Krishna consciousness, वो ट्रेन में बैठा है, गोलोक ट्रेन में बैठा है बस. हम फर्स्ट क्लास में हैं, सेकंड क्लास में हैं, हम स्लीपर में हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं, और एसी में हैं, और नॉन रिजर्वेशन में हैं, डजंट मैटर. हम नॉन रिजर्वेशन में बैठा है अभी, बट गोलोक ट्रेन में बैठा. सो कैसे भी हम पहुंच जाएंगे गोलोक वृंदावन, बट फिर भी हमका एक ही कंडीशन है, हम ट्रेन से उतरा नहीं, मतलब एक कृष्णा कॉन्शियस से उतरना नहीं. ये फ्रस्ट्रेशन होता है, हमेशा होता है, हमको रोज होता है, बट फ्रस्ट्रेशन का उसका मन में नहीं रखना. वो जबरदस्ती भागवतम पढ़ना है. भागवतम पढ़ के श्रृणवन्ता श्रद्धया नित्यम ग्रंथ कालेन नति दीर्घेन. It will not take much time and Krishna will appear. And then he will pacify us. And Krishna will rectify. सर्वे गुण तत्व समासुते स्वरः. हम जब तक हम अकिंचन भक्ति, just like that Prabhu, no, Vrajavilas Prabhu, he did without any motivation. So Krishna is giving the pleasure, transcendental pleasure. Krishna is pleased, Prabhupada is pleased. That pleasure will come. हमारा वो नेक्टर हमको क्या मालूम नहीं, वो इतना बड़ा नेक्टर है, वो शुद्ध नेक्टर हमको मालूम नहीं, हम टेस्ट नहीं किया, भक्ति का रियल नेक्टर टेस्ट नहीं किया, इसके वजह से हमको ऐसा हो रहा है. सो फिक्र मत करना, it will come. It is a process. So this process will take some living it is 1 janma, some living it is hundreds of janmas. But फिर भी हम chanting कर रहे हैं, chanting कर हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, मंगलारती कर रहे हैं,
ट्राई कर रहे हैं मंगल आरती करने का, यही उनका मन में होना चाहिए. महाराज बोल एटलीस्ट थिंक दैट आई हैव टू डू मंगल आरती, forget about doing मंगल आरती, think about doing मंगल आरती. Maharaj goes to that extent. We should not ever get frustrated or depressed, because dukkha bhaya shoka will put you in devotional service. There is no dukkha, there is no bhaya, there is no shoka, because ये सब शरीर का वजह से, ये आत्मा का नहीं है. आत्मा का दुखा भय शोका नहीं है, ये सिर्फ शरीर का है. सो शरीर तत्व में रहेंगे तो ये दुखा भय शोका होगा. इवन इन भक्ति वी विल डू दुखा भय शोका, बिकॉज भक्ति इज डन इन द मोड्स, 3 modes of material nature. We should transcend the modes. So that's how we should see how Maharaj did, how he made simple. Complicated nahi hai, simple bhakti karna hai. Simple bhakti means straightforward. The more we are straightforward and more we we have to take it seriously. Probably क्या कहना, हम वेट करें अगले जन्म में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ऐसा नहीं है. हमको पास टाइम नहीं है. प्रभु जी हम 58 प्रभु, I may leave the body any time. So how serious I should be? But I am not serious. I am telling you frankly. हम तो बहुत पीछे. आप लोग तो इतना बड़ा है, आप रोज भागवतम सुन रहे हैं, सब डिवोटीज बोल रहे हैं, तो इतना सुन रहे हैं तो बहुत बढ़िया है. प्लीज don't get dejected or depressed, because Maharaj says, no, there is a nice verse. Because Brahma was depressed how to do the creation, and then Krishna Magas Tandri, never get depressed in bhakti. Bhakti में depressed नहीं होना चाहिए, because depression होता है तो शरीर तत्व और आत्म तत्व नहीं. So इसलिए हम enthusiasm उत्साह से भक्ति में बढ़ना, यही कोशिश करना चाहिए. Please, I am praying to you also. We'll pray to Maharaj, and every day we have to put the chart. These are all the mistakes I have done. How to rectify it? But क्या होता है, वो रोज repeat होता है mistakes. But फिर भी we are becoming conscious of the mistakes. Forget about rectifying the mistakes. That is the next stage. That is the clearance stage. That is abhasa. We are in the offensive chanting. Then we go to the offenseless chanting, abhasa, and then Shuddha Japa. Shuddha Japa, pure chanting. So offenseless chanting and then Shuddha Japa. So that we are not reached. So we are in the offenseless chanting. So every day the offenses. Only thing is, don't increase the offenses. Offenses they increase mat karna. Always सोचना. Try to reduce it and try to contemplate. Your reflective होना चाहिए. रोज हम क्या भक्ति किया, ये भक्ति कृष्णा के लिए किया, हमारे लिए किया. ये मंगलाजी हम कृष्णा के लिए किया, हमारे लिए किया. वही सोचना. Every moment we have to think about it. Then it is okay. And then Maharaj says one more point. We should remember our death. Anytime death can come. Coronavirus is so epidemic. Has taken away all the devotees. Two devotees have been taken away. One is Jashamanti Prabhu, another Bhakti Charsan Maharaj. It is very, very painful that any time this can come. It is in the air. The death is waiting in the air. So pitiable. So how much anxious we should be. And that's why Maharaj says we should be anxious. Anxious hona chahiye. Bhakti kaise karna hai. Maharaj says we should be anxious of only one thing. How to improve the devotion. That's all. This is my humble opinion. Maybe I have told something wrong. Anybody can add. They can add also. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. Very nice explanation of. You repeated what Maharaj told. आपने जो महाराज ने बताया वही आपने रिपीट किया. वही रीत है कि ऑनेस्टी होनी चाहिए. और आपने कहा कि भाई वो सोचना नहीं, लेकिन हमको हम बस में बैठे हैं, फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में महात्मा ने बस में बैठे हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है. बहुत सुंदर प्रभु जी. तो हम आपकी सेवा लेते रहेंगे और कल वापिस हम शाम को 6 बजे मिलेंगे. कल ऋषिकेश प्रभु जी का प्रवचन है और उनका प्रवचन का सब्जेक्ट है आवर ऑल डेवरिंग एनिमी. आवर ऑल डेवरिंग एनिमी, हमारा सर्वभक्षी शत्रु. तो हम वापिस मंदिर की तरफ से और सभी श्रोताओं की तरफ से सज्जन प्रिय प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सुंदर ही उन्होंने प्रवचन दिया और ऐसे ही सेवा हम लेते रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. और यहाँ पे हम लोग आपका आज्ञा लेते हैं. हरे कृष्ण. धन्यवाद. प्रणाम प्रभु जी. Sorry, Prabhuji, I could not come for the Jashamanti lecture. There's nothing to worry. Nothing to worry. But my mother is not well, so I couldn't come. Okay. Oh, but you have to message me na that you are. You told that you are not. I thought why you are not there. I was feeling guilty. I couldn't come. I couldn't respond to you. Sorry, Prabhu. No, it's okay. It's okay. Nothing to worry. Okay. Again, we'll meet sometime. Thank you, Prabhuji. Thank you, Hare Krishna.